ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਨ੍ਰਿਤ ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ 22ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵੈਲਕਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो अज इस 22वें साडी इस लड़ी दे विच अज असी बहुत असी कह लो कि असी शुक्रगुजार हाँ रानी बलबीर कौर होरां दे जिन्हां ने सानू ये टाइम दिता। और मैनू लगदा सी कि जिहड़ा ये समा साडे जिहदे विचों असी लंघदे पए आ, सारे जिहड़े क्रिएटिव लोग जिहड़े आ इन्हां समयां दे विच ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਾਟਕ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਖੌਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਵੀਟ ਆਵਾਜ਼, ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਟਕ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭੋਪਾਲ ਵੀ, ਬੰਬੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 1974 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਟਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਹਿ ਲੋ
मुकाम बन गया। इन्हां ने कैफी आजमी साहब के बारे विच जदों प्रोडक्शन की तो एक वखरा नवा मुकाम सीगा। इन्नियां क्लासिक इन्होंने प्रोडक्शन कीतियां और बड़ा लंबा सफर है कि चाहे वो इन्होंने मिर्जा साहिबा दी साहिबा होवे, चाहे रानी जिंदा दी रानी होवे। तो मैं हमेशा उदा बड़े मान ना कहना होना इन्हां दा इन्ना कम है कि मैं कहना ना पंजाबी रंगमंच दी रानी रानी बलबीर कौर। सो ये रानी बलबीर कौर पंजाबी रंगमंच दी रानी है और इन्हां दे उस सफर नू सल्यूट करना बनता है कि इन्होंने जिन्नी मेहनत नाल लगन नाल खूबसूरती नाल, वड्डी गल है खूबसूरती नाल, अदायगी दे नाल, हलीमी दे नाल, हौसले दे नाल अपनी जिंदगी दा सफर तय किया। वो बहुत पड़ाव ने इन्हां दी जिंदगी दे। इन्हां ने जिस तरह कह लो कि संघर्ष दे नाल हर पड़ाव पार किया, हर पड़ाव पार किया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਕੱਲਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ कि क्योंकि इन्होंने मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाया, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाया, इन्होंने वर्ल्ड ड्रामा बच्चों को सिखाया पढ़ाया। सो इन्हों दे इन्ने सारे लेयर्स ने एक पर्सनैलिटी दे। सो मैं रानी जी तुहानू जी आया आखदा वां ते हुण असीं तुहाडे नाल गल्लां करदे हां। सो मैं बस जिवें कि असीं हमेशा गल्लां करदे कि इस सफर दी शुरुआत मैनूं पता तुहाडा लाहौर दे नाल भी तुहाडे पेरेंट्स दा तुहाडा बहुत नेड़े दा रिश्ता है। मैं उत्थे जम्मी सां। क्या बात है, लाहौर दी जम। हां सो ये तुहाडा लाहौर अमृतसर ते इधरला पंजाब उधरला पंजाब दोवें तुहाडे ने। तो सो मैं चाहांगा कि दोवां पंजाबां दी सांझ बारे भी गल करियो तुसीं अगले अगे जाके। तो सो मैं चाहांगा तुहाडा मुढ़ला सफर तुसीं, क्योंकि इन्ना ज्यादा परफॉर्मिंग आर्ट विच गायकी और ईवन नृत्य दे विच भी तुहानू बड़ा एक्सपर्ट, पर गायकी विच तुहाडा अपना मकाम है और अदाकारी विच तुसीं ये सफर किवें तुसीं शुरुआत कीती असीं ओ जानना चाहांगे। रंगमंच विच तां मेरा जिहड़ा प्रवेश होया, रंगमंच विच मेरा आना एक किस्म दा हादसा ही सी। मैं था संगीत दे क्षेत्र तो हाँ और संगीत ही मेरा सब्जेक्ट सी और संगीत ही मैं काफ़ी साल गांदी रही और ऑल इंडिया रेडियो च भी गाया, टेलीविजन च भी गाया, स्टेज उत्ते गाया और एज ए गायिका ही मैं जानी जाती सां। ते रंगमंच दा ते कदे ख्याल भी नहीं किया कि मैं कभी रंगमंच विच जावांगी। सो एक हादसा ही सी जिंदगी दे च। मैं एक गल दा विश्वास करनी आ कि जिंदगी दे जिहड़े थपेड़े पैंदे ने, जिंदगी दियां जिहड़ियां औकड़ां आंदियां ने, जिंदगी दे विच जिहड़ियां मुश्किलां आंदियां, दुख झेलने पैंदे ने, वो तुहानू किते ना किते एक होर प्यूरीफाई करते हैं, तुहानू एक बेहतर इंसान बनाते हैं और एक बेहतर कलाकार भी बनाते हैं जी। ते मैं शास्त्रीय संगीत गांदी हुंदी सां, शास्त्रीय नाल सैमी क्लासिकल भी। अपने कॉलेज की टॉप मोस्ट और हर कंपीटिशन विच मैनूं भेजदे सी। मिसिस राम हुंदी सी साडे प्रिंसीपल, बड़ा प्यार करदे सी मैनूं और हर जगह जाके मैं ट्रॉफी लेके आंदी सी कॉलेज ले। और मेरी पूरी दुनिया जड़ी सी उस संगीत सी और मैनू ऐसी कि जब मेरे को कोई संगीत खोलेगा तो मैं तो शायद मर जाऊंगी। लेकिन वही होया, संगीत भी मेरे तो छिन गया और जिंदगी बड़ी बेहाल हो गई। और उस बेहाल हालत मैं दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी च आई। ये मेरी शादी मेरे 2 बच्चों तो बाद की गल है। पंजाब यूनिवर्सिटी आई, मैं डॉक्टर BN गोस्वामी नूं मिली। उन्होंने मैं कहा कि जी मैं संगीत दे विच PhD करना चाहनी हाँ। उन्होंने कहा कि संगीत तां परमिटेड ही नहीं है क्योंकि देयर इज नो फैकल्टी ऑफ म्यूजिक इन द यूनिवर्सिटी।
मैं उन्होंने कहा जी मैं एक सवाल तुहाडे तो पुछदी हाँ कि भी सारे जिन्ने आर्ट्स फॉर्म्स ने जिन्नियां भी आर्ट फॉर्म्स ने उन्हां च फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट केड़ा है? कहंदे जी संगीत। ते मैं उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक कोट सी वो मैं सुनाया। मैं क्या तुसी सहमत हो मेरे नाल? कहंदे हाँ बिल्कुल, इट्स द फाइनेस्ट ऑफ फाइन आर्ट्स। ते मैं क्या तुसी इत्थे फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट खोल के बैठे हो ते पीएचडी क्यों नहीं अलाउ कर दे म्यूजिक में? ओह पता नहीं, मैं बड़े क्योंकि दुखी बड़ी सा, बहुत परेशान सा कि कोई जॉब मिल जाए, कोई मैं काम करा। मैं अपनी इस हालत दे विचों बाहर निकला क्योंकि बहुत ज्यादा दुख झेल लिया सी। उदों मेरी उम्र हाले 26-27 साल दी सी। मेरे 2 बच्चे भी हो गए सन, छोटी छोटी मेरी 2 बेटियां सन। वो मुस्कुराए और मैनू कह लगे चल ठीक है मैं कोशिश करदा, तू अपनी एप्लीकेशन पा दे। और वो मेरी एप्लीकेशन घूमती रही, अप्रूव ना हुई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस विचकार अखबार निकलिया कि भी एक ड्रामा डिपार्टमेंट इत्थे एस्टैबलिश किया जा रहा है। और बलवंत गार्गी का बड़ा बड़ा नाम सी, दुनिया भर दे विच ओहदा नाम सी। कई बारी अखबारां च इलस्ट्रेटिव वीकली दे विच मैं बड़े आर्टिकल्स पढ़े सन। एक बड़ा मान सी उन्हां दा, बहुत इज्जत सी मन विच। सो मैं क्या चलो इत्थे अप्लाई कर दिनी आ। घर वाले कहन लगे कि भी असीं कोई मरासी हाँ, तू पहले गाना गुना गा लैंदी सी, असीं तैनूं परमिशन दे दित्ती ते हुण तू है थिएटर थूटर नहीं करना। मैं क्या मैं उन्होंने बहाना पाया कि मैं जॉब लभ रही हाँ और आजकल बड़ा है कि भी तुहाडे कोल थिएटर की जो ट्रेनिंग है तो जॉब मिल जाती है, टीवी दे विच भी जॉब मिल सकती है। ये वो बड़ा उन्होंने मैं समझा समझू के मैं उत्थे एडमिशन ले ली। एडमिशन भी औखी मिली क्योंकि मेरा कोई रंगमंच दे विच कोई मेरा अनुभव नहीं सी, कोई कुछ किसी किस्म का जिहड़ा मैं उत्थे दिखा सकती कि हाँ मैं ए प्ले कीता, एक्टिंग की है या डायरेक्शन की है, कुछ भी नहीं। और 5 सट्टे ही उन्होंने मैनू रिजेक्ट करता गार्गी साहब ने। मैं जो निकलन लगी तो मेरे सर्टिफिकेट्स देख रहे सन ते कहंदे अच्छा तू गांदी है ते जरा खड़ी होके गा के कुछ सुना। ते मैं ते आदि सा कि तानपुरा रख के थले जमीन पे बैठ के गाना। ते अचानक जो मैं स्टेज उत्ते खड़ी हो गई, स्टेज फ्राइट मैनू नहीं सी क्योंकि मैं स्टेज उत्ते गांदी रही हाँ। और जिसलिए खड़ी हुई तो एक सेंस ऑफ लिबरेशन सडनली कि भी मैं खड़े होके कभी गाया नहीं, खड़े होके गाने था बड़ा अच्छा। और क्योंकि थोड़ी जी मेरी बैकग्राउंड डांस भी सी, मैं भरतनाट्यम सीखा सी, कथक सीखा सी थोड़ा बहुत। और दिमाग दे विचों फिल्मी चीज़ां दा ज़हन विच सी कि भी उन्होंने कहा कि एक कुटीजा है, एक वो इस तरह गणिका चलती है नाल गांदी है। ते मैं दिमाग दे विचों बजंती माला ते ये वो सो इंज मैं चल के ते राग बसंत गाया। तेरी आई बसंत खिले बन फूलवा। ते मैं देखा कि पूरा पैनल सी, ਉਹਦੇ ਚ किरण ठाकुर सिंह भी सी। पूरा जड़ा सिलेक्शन पैनल सी वो गार्गी साहब दी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस सी और उन्होंने नाल काफी देर काम कर चुकी थी सी। जड़ा प्ले सी डिजायर एंड द एल्म्स, काफी प्लेस वो कर चुकी सी। महेंद्र जी भी सन, वो भी गार्गी साहब दे बड़े नेड़े सन। ते इस सारे पैनल दे विच जदों मैं इस तरह गाया कि एवरीबडी वाज सिटिंग क्वाइट, एकदम मेरे वाल इंज देख रहे सी और कोई कुछ बोलिया नहीं। मैं क्या तो मैं फेल हो गई हाँ। मैं अखां च मेरे अथरू आ गए और मैं रोन लग गई। मैं अपने पेपर्स चुके और उतों मैं बाहर निकल गई। ये भी नहीं पूछा कि मैं जावा कि ना जावा। मेरी इंटरव्यू ओवर हो गई है। मैं घर आ गई, घर आके रोंदी रोंदी घर आए, कहती की गल हुई? मैं क्या बड़ी खराब इंटरव्यू गई है, मैनू केड़ा एक्सपीरियंस सी, मैं एवें चली गई, बड़ी बेवकूफी की मैं।
मैनू थिएटर डिपार्टमेंट कितने एडमिशन मिल जानी सी। और 2-3 घंटे बाद फोन आ गया कि भी तू मैरिट ते आ गई है और तेन स्कॉलरशिप भी दिता जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं बड़ी हैरान, हालांकि वो स्कॉलरशिप फिर मैं बाद एक विधि कुड़ी हैगी सी नाहन दी, बड़ी नीडी सी, मैं उन्हें दे दिता। सो हालांकि मैं भी बड़ी कोई फाइनेंशियली सिक्योर नहीं सा उदों, पर मैं उन्हें दे। सो वो मेरा पहला अनुभव सी किसी नाटक के नाल। उस तो बाद एक नवी दुनिया थिएटर दी मेरे सामने आई और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खुल के हसन दी, खुल के रोन दी, खुल के चीखा मारन दी, खुल के अपने अंदर दे जिन्ने गुबार ने उन्होंने कढ़ के बाहर उन्होंने आउटलेट देने का एक मंच। क्या वाह, क्या बात है। इतना बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि अंदर वड़ वड़ के रोंदे रहो, अंदर वड़ वड़ के कुड़ करते रहो, घर दे विच बड़ा कलेश। और वो एमरजेंसी उदों लागू हो गई सी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और फाइनेंशियली बहुत लोगों ते मुसीबत आ गई सी। मेरी फैमिली भी इज वन ऑफ दैट, उन्हां दे विचों एक सी। सो घर दे विच भी बड़ा कलेश ते मैं हमेशा ना यही सोचती कदों मैं डिपार्टमेंट पहुंचा। डिपार्टमेंट जाती ते एंटर ही करती कॉरीडोर तो ते साह च साह आ जाता कि सो इस तरह के माहौल दे विच मैं अपनी शुरुआत की और मैं लग्या कि आई एम रिवाइव्ड, आई हैव फाउंड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मेरा मतलब बिल्कुल ऐदा सी कि शायद मैं उसी तरह किसी एक मेरी दोस्त सी उहदे नाल भी इस तरह का हादसा होया, शी लॉस्ट हर मेंटल बैलेंस। मैं उहदी याद करती, बार बार याद करती कि किते मेरे नाल भी वो ना हो जाए। और लेकिन थिएटर ने मैनू जान दी, थिएटर ने मैनू न्यू लीज ऑफ लाइफ दी, थिएटर ने मैनू जीना सिखाया। और थिएटर ने मैनू यह भी सिखाया कि जेडे मेरे दुख ने, जेडे मैं अंदर पाल के बैठी हाँ, उन्होंने ते मैं अपनी कला दे विच परो के, कला दे विच ढाल के, कला दे विच समूह के मैं ते अपने आप नू, अपने वजूद नू होर भी निखार सकनी हाँ। रानी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? देखो जी, मेरे हर इंसान जिहड़ा ना वो वर्सटाइल है। मैं इस गल विश्वास रखनी हाँ कि असी बंदियां तेरियां दस देइयां इको गई विहा, बाकी किधर गईयां, साडे च किन्ने फोल्ड पॉसिबिलिटीज हुंदियां ने। असी उन्हां नूं एक्सप्लोर नहीं करते, उन्हां नूं हवा नहीं देंदे, उन्हां नूं प्रोत्साहन नहीं देंदे। असी अपने आप नूं सीमित कर लैंदे हां अपनी सोच च, पहले ही सोच लैंदे हां कि भी मैं आ हाँ बस जी। और फिर उसी लाइन दे उत्ते एक ना ग्रूव्स जे बना लेने आ, फिक्स्ड अपने बारे च ग्रूव्स बना लेने आ, ओदे च ही चलते रहने। मेरा की सी के मेरा परसूना वो उदियां सोर्सेस सन। मैं गुरबाणी नाल बचपन तो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई सा। मेरी दादी जी सन, उन्होंने वो सिख परिवार दी धी सन ते उन्हां दा ब्याह हो गया सी हिंदू परिवार च जी। ते उन्होंने अपने पूरे परिवार नूं सिख सजाया और सारियां नूं पाठ करना सिखाया
और सारे बच्चों ਨੂੰ इनाम रखते सन कि भी इन्ना इनाम मिलेगा पाठ सीख लो ते असी कंठ मैनू ऑलमोस्ट सारी बाणी कंठ सी सारा नितनेम कंठ सी सो एक ना बड़ी भारी सोर्स मेरे अंदर सी अथाह मेरे च शक्ति पैदा करता सी और मैं एज ए टीचर इन्ना इंजॉय करती सा क्योंकि मैं कदे भी टीचर शुरू जो मैं लेक्चरर लगी तो मैं बड़ी नर्वस होंदी सा मैं बड़ियां कॉपियां नाल लेके जांदी सा नोट्स बना के नाल ले जांदी सा और फिर उहदे विचों पूरा इंज टेक्स्ट वांगू पढ़ांदी सा लेकिन हौली 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 मैनू ये बड़ा ही ड्राई जिहा बड़ा ही फ्यूटाइल जिहा लगन लगा ते फिर मैं ना अपनी मन दियां गल्लां उन्हां नाल करदी अपने अनुभव करदी एक्टिंग सिखांदी ते एज एन एक्टर उन्हां नू दसदी फिर संगीत एक मेरा बड़ा बड़ा सोर्स रहा है संगीत जिहड़ा वो तुहाडे च एक रूहानगी लियांदा है एक अथाह इमेजिनेशन लियांदा है संगीत दे जो सुर छिड़दे ने तुहाडा पूरी जिहड़ी क्रिएटिव फैकल्टीज ने वो जागरू हुंदियां ने संगीत इज अ वेरी बिग सोर्स और मैं हर अपने एक्टर नू भी सिखांदी तू गवैया ना बन तू संगीतकार ना बन लेकिन संगीत दी सूझबूझ जरूर रख सुर दी सूझबूझ जरूर रख और मैं ते अपने वालों कहती सी हौली हौली टेक्स्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं देखा दुनिया के जिन्ने मास्टर्स ने भावें अरिस्टोटल सी भावें वो स्टेनिस्लावस्की सी भावें वो पीटर ब्रुक सी भावें ग्रोटोवस्की सी जिदा भी तुसी नाम लाओ सब ने संगीत नू आधार बनाया गार्शिया लॉर्का जिहड़ा उस संगीत दे विच रंग देखदा है और सुर देखदा है सो मैं जो पढ़ांदी थी मैनू लग्या कि लै मैनू मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा पहले ही जिहड़ा बैकग्राउंड है जिहड़ा मेरा पुट है जिथों मैं आई हाँ वो संगीत है सो मैं बड़ा इंजॉय किया पढ़ाना भी और एज एन एक्टर मैं मतलब आज तक बयान नहीं कर सकी कि भी इस तो वड्डा कोई जॉय हो सकता है मैं इन्ना इंजॉय करनी ते मैनू नहीं लगता कि पढ़ाना भी और नाल एक्टिंग करनी भी नाले मैं म्यूजिशियन हाँ मैं कई गीत भी कंपोज किए ने और जिहड़ा भी नाटक किया है सारा संगीत उहदा मैं ही किया आप ही किया है कई 30-40 गाने इको नाटक दे मैं कंपोज किए ने रानी जी जेडे तुसी इन्ने गीत कंपोज किए कोई सानू सुनन दा मौका मिलेगा कोई थिएट्रिकल कोई सॉन्ग हाँ जी कोई मिठी आवाज दे मैं हाँ जी थिएट्रिकली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कंपोजिशंस जी ऑफ जिहड़ा थ्री पेनी ओपेरा प्ले होया सी हाँ ਉਹਦੇ ਚ मैं पॉली ਦਾ रोल ਕੀਤਾ ਸੀ ऑपोजिट अनुपम खेर ਦੇ और ਉਹਦੇ 30 सॉन्ग्स ने ਜਿਹੜੇ मैं क्रिएट ਕੀਤੇ ਸਨ और बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ब्रेख्त ਦਾ एक कॉन्सेप्ट है कि ਜਿਹੜਾ संगीत है वो मन ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ नहीं है वो मेलोडियस नहीं होना चाहिए वो जारिंग ਉਹਦੇ ਚ जैज इस तरह ਜਿਹੜਾ सुर है ਉਹਦੇ ਚ भी क्वालिटी ऑफ ब्रेकिंग और जिहड़ी रिदम ने वो एक जगह एस्टैब्लिश ना होके फिर रिदम नूं तोड़ दिओ ताकि जिहड़ा इमोशन है वो अलाइव रहे उहदे च जिहड़ी सेंस ऑफ एलिनेशन है वो कदे ना मरे ते उहदे विच अनुपम ते हाले भी गांदा रहिंदा वो गाने वो एक सी मैखी दा गाना मेरी आवाज ना आजकल बहुत वीक है क्योंकि मैं खुद वीक हुई दी हूं ओवरवर्क्ड लेकिन मैं तानू मना नहीं कर सकी वो गाना मगरमच्छ की दांत है बड़े बड़े पर है वो उसके मुंह में सब देख सकते हैं लेकिन मैं खीत का जो चाकू तेज धार रखता वो उसकी और छुपाता उसे न जाने कहां पर मैं गा नहीं रही मैं तो रिसाइट ही कर रही हूँ हाँ गा ही रहे हो सुना है आज नगर में है मैं की आज नगर में है मैं की सुना है इस एक और शोर गीत सी
धोखा न खाइए साहिबान, गुनाहों पर ही तो है जिंदा इंसान, इंसान इंसान, धोखा न खाइए साहिबान, ऐसा। और बहुत सारे नाटकां दे विच क्लासिकल भी कीता है, जिवें अग्नि और बरखा, भगवदज्जुक्यम और भारत दुर्दशा, इस कई नाटक ने, ब्रक्त भी कई नाटक मैं आप भी कीते, बाद दे विच गुड वुमन ऑफ सेजुआ। सो सारियां दे विच मैं संगीत दिता। नीलम नाल भी मैं एक प्ले कीता सी, माया मेरा ठाणेदार, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ गीत मैं ही कंपोज कीते सन। निसार लाना अमाल लाना ने ਜਦੋਂ मैं काम करदी सी, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, रानी you got so much music in you। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं वो हाली ताजे थोड़ा भी सा मैं आजकल थोड़ी जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 뮤직 ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ रियाज करेंगी, रियाज ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮਚ, ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ और ਜਿਹੜੀ तेरी ना अनइंटरप्टेड ਇਹਦੀ इमेजिनेशन है। और मैं बिल्कुल नहीं मतलब ਇਹਨੂੰ एप्रिशिएट करनी है, नहीं शलाघा देना चाहती। नहीं एक्सट्रीमली। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਸੀ, ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। गार्गी साहब एक बहुत ही ग्रेट टीचर सन, एंड इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग कि वो मेरे पहले टीचर सन जी। हालांकि उस बाद बीवी कारंत भी आए, उन्होंने को भी सीखा, काजी साहब तो बहुत सीखा, बहुत ज्यादा। मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ NST ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2nd ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਪੂਰੇ NST ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2nd ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ मेरे दोनों जो छोटिया मेरिया बेटियां सन, मैं उत्थे हॉस्टल विच नहीं सा रह सकती ते मैं नहीं गई। जी। लेकिन गार्गी साहब बहुत महान टीचर सन। जदों वो डायरेक्शन देंदे सन एक्टर्स नूं, वो कदी भी उन्हां दे उत्ते भारू नहीं पैंदे सन, जिवें कि ना टू मच इंस्ट्रक्शंस, टू मच आइडियाज, टू मैनी यू नो ऐ करो उवें करो, बड़ा रिजिड बना देना एक्टर नू अपने आप विचरण ना देना, अपने आप सोचन ना देना, अपने आप यू नो लिबर्टीज ना लैन देना, वो जे नहीं सन। वो बड़ी घट तुहानू इंस्ट्रक्शंस देंदे सन, बहुत घट सीमित नटशेल दे विच गल समझा देंदे सन और फिर तुहानू खुला छड़ देंदे सन। And it was great working with him. As an actor, I learned how to tap my own resources, कि मैं अपनियां जड़ियां अंदर मेरियां फैकल्टीज ने टूवर्ड्स एक्टिंग, कि भी एक्टिंग नूं मैं किवें अप्रोच करा, अपने रोल नूं मैं किवें अप्रोच करा, उन्नू मैं किवें क्रिएट करा। और उस तो बाद अमाल अलाना मेरी टीचर रही। शी अगेन इज अ वेरी ग्रेट टीचर and I learned a lot in acting. And then Mohan Maharishi in जड़ा प्ले सी रानी जिंदा जी। मोहन महर्षि की सी कि मैं कोई भी जेस्चर नू या कोई भी डायलॉग नू
मैं जो इंजॉय करना शुरू कर दिंदी सी, स्वेच आ जाती सी, उन्होंने कट देंदे सा। वो मैंने कहंदी सी नो नो यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, डू इन ए डिफरेंट वे। मैं पहले बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती सी, बड़ी झुंझला उठती सा, क्यों करते ने इस तरह। और मैंने मुश्किल नाल इमोशन क्रिएट किया है, मैंने इमोशन नाल जेस्चर बनाया है। वो एक जगह रानी जिंदा ने हाथ मार के कहती है मैं सब तहस नहस करना दी। तो कहते सन कि नहीं, द एक्टर मस्ट हैव ए कंट्रोल्ड इमोशन, इट कैन नॉट गो ओवरबोर्ड। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ बेकार है। हेलो जी 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 सुन रहे। अच्छा अच्छा जी जी सुन रहे। मेरा फोन मारू जिया है, मैं क्या वैसे था नहीं बहुत सही आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। सो एक्टिंग बड़े रोल कीते ने। रानी जिंदा वाज वन ऑफ दोज रोल्स जिदे च मैनू बड़ी ग्रेटिफिकेशन मिली, बड़ा आनंद आया। और औखा सी रोल, बड़ा औखा सी, क्योंकि मैं हर बारी क्वीन बनने की कोशिश, रानी जिंदा बनने की कोशिश करती सा, लेकिन वो रानी सीगी नहीं, वो बहुत ही नाइव जिन्हों को कि भी बड़ी उन्होंने कोई समझ नहीं सी, बड़े गलत वो फैसले लेंदी सी। और वो एक हिस्टोरिक इपॉक है कि जिन्हें उन्हें गलत फैसले लाए और अंग्रेज साडे पंजाब विच आ बड़े। ते वो दी जिहड़ी है ना शख्सियत तो बड़ी कॉम्पलैक्स सी, ते भज जांदी सी, जेलां दे विचों एस्केप कर जांदी सी, और सारी उम्र वो गालां कढ़दी रही अंग्रेजां, बिल्कुल उन्हां दे सामने झुकी नहीं, मर गई पर झुकी नहीं। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਰਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਕਦੇ ਮੈਂ, और वो इन्नी पैथेटिक सी कि कदे भी पूरी होने वाली वो यर्निंग नहीं सी कि भी कदे मैं दलीप सिंह नूं लैके जावां वापस पंजाब ते इनू मैं गद्दी ते बिठावां ते मैं फिर तो खालसा राज स्थापित करा। वो बड़ी पैथेटिक सी। सो ओहदा बड़ा कॉम्पलैक्स रोल सी, बड़ा अच्छा लग्या एज एन एक्टर। पर जदों असीं अमेरिका गए, उत्थे बड़ा एक गलत हो गया। मैं एक्टर्स नाल वो गल शेयर भी करना चाहांगी कि जिथे जांदे सा आप भगत इन्नी, खातरदारी इन्नी, खुशियां इन्नियां, पार्टियां इन्नियां, वो सारे एक्टर ही पार्टीबाज बन गए। और जिहड़ी कॉन्सनट्रेशन नाटक दी कदे ना होण दिओ, कदे ना होण दिओ। जदों भी तुसी नाटक करो ते हर पल जियो, हर पल मरो, फिर तो रिक्रिएट करो, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰੈਸ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਊ ਟੂ ਟੀਚ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਟਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਰੀਅਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਟਰੂ ਵੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो जी, जिस तरह मैं थानू पहले भी कहा कि देयर इज ए प्रोसेस एंड देयर इज अ ग्रामर। जिवें कि लैंग्वेज भाषा नू सीखण लई सानू एक ग्रामर चाहिदी है, व्याकरण चाहिदा है, उसी तरह सानू एक्टिंग दे लई भी है। लेकिन वो जिहड़ा प्रोसेस है, अगर तुसी कहो कि जी मैनू कोई इहदी लोड़ नहीं, मैं शॉर्टकट मार के ते मैं हर चीज नू समझ लांगा, उसकी बारीकियां नू समझ लांगा, कि भी मैजिक इफ ही है। तुसी देख लो, अगर स्टैनिस्लावस्की कहता है कि मैजिक इफ है कि तुसी इफ लगा दियो किसी चीज नाल के जे इस तरह हुंदा, जे इस तरह हुंदा, हुण जे इस तरह हुंदा एक बारी नहीं, वो तुहानू बार 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 द डिफिकल्ट मस्ट बिकम repeated, the difficult must become easy and easy becomes habit. So जब तक वो हैबिट तक नहीं पहुंचता, जिवें कि तुसी सुर सीख लैंदे हो,
सत्त सुर लगाने सीख लेंदे हो, लेकिन जब तक तुसी ओदी रागदारी नहीं सीखते, फिर रागदारी करते करते खुली रागदारी आ जाती है जिहदे तुसी राग नूं भुल जाते हो और क्रिएट करना शुरू कर दो। उसी तरह एक्टिंग विच भी जिहड़े ज्यादातर बच्चे ने, एक मेरे को बच्चा आया जी, मैं भगत सिंह दा रोल किया है, कि मैं ते मैडम बीमार हो गया, ना मैनू नींदर आंदी है ना मैनू भुख लगती है, और उसकी मैं शक्ल देखी ते परेशान जिहा, अखां लाल ओदियां। मैं कहा कि बिल्कुल गलत बेटा तू चल रहा है, बिल्कुल गलत चल रहा है, तू भूल रहा है कि तू एक एक्टर है। And that sense of detachment you have to create in yourself and play the role. You have to play the role. You don't have to become the role. ये गलत है। ये ब्रेख्त ने भी सिखाया। ब्रेख्त ही अगे चला गया ना स्टैनिस्लावस्की नूं नकार के, वो कहता कि भी एक्टर नूं कदे भी इमोशन दे विच अपने आप नूं स्वे नहीं करना चाहिए, जान नहीं देना चाहिए। इमोशन नूं वो इस तरह पकड़े जिहड़ी ओदी बिल्कुल सूझ-बूझ अलाइव रहे, ओदी समझ अलाइव रहे, और जो कर रहा है उन्हें पता है कि ओदा की डिजाइन है, वो किस रुख च जा रहा है, मैं केड़ी चीज नूं हाईलाइट करना है, मैं केड़ी चीज नूं अंडर प्ले करना है, वो पूरे ओदे कंट्रोल। जिवें कि एक साज वजाईदा ना, कि वो साज वजांदे वजांदे अगर तुसीं ओदे गवाच ही जाओ तो तुहानूं पता ही नहीं तुहाडीआं उंगलियां कित्थे जा रही हैं। उसी तरह एक जिहड़ी बॉडी है एक साज है, और उन्होंने वजांदी रहो वजांदी रहो वजांदी रहो, ते ओह मंझ जांदा है, फिर वो एक तुहाडे कंट्रोल च आ जाता है। ते ये जिहड़ियां चीज़ां ने एक करते की कला है। बिल्कुल बिल्कुल कर करके तुहाडे उस सिस्टम दे विच आ जांदियां ने। फिर बिल्कुल यही तो मैं आप हमेशा इस गल च यकीन रखदा कि यही जिहड़ा साडा क्रिएटिव प्रोसेस है, इहदी यही खूबसूरती है कि जो जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, जो ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, कई डायमेंशनस कई रस्ते नजर आउंदे आ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ नजर आउंदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, और बड़े खूबसूरत रस्ते फिर बनते आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ दिमाग डिटैच रहे तां, जे ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ही ਵਿੱਚ ਸਵੇ कर गया ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ? हाँ जी, मैं एक राणी जी कि मतलब साडे मतलब ये भी एक चैलेंज है ना कि कई बारी जेड़ा साडी ऑडियंस है, साडा दर्शक भी है, वो भी कई बारी जिस प्ले नूं देख रहा हुंदा ओहदे बारे जिन्नी की जानकारी वो रखदा हुंदा है, कई बारी वो भी सवेरे हो जांदा है कि सानूं ये भी चैलेंज हुंदा भी असीं ओनू भी थोड़ा चैलेंज विच पाना हुंदा है, थोड़ा रिस्क लेना हुंदा है कि थिंक समथिंग एल्स एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर जां कुछ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਕੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਚੈਲੰਜ? ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਫੀ ਦੀ। वो कैफी दी एक नरेशन सी ओदी लाइफ दी और दी पोइट्री दी, है ना बेटा। ओदा पूरा जिहड़ा फॉर्म सी प्ले दा दैट वाज डिफरेंट, है ना। ओदे च कोई साइकोलॉजिकल चैलेंज नहीं सी, किसी एक्टर नूं भी नहीं सी, और ना पूरा ओदा जो स्ट्रक्चर जिहड़ा प्ले दा सी वो नैरेटिव सी, है ना। सो ये है कि भी तुसी जिहड़े ऑडियंस नूं नाल लैण दी गल कर रहे हो, अगर तुसी महसूस कर रहे हो, नाट्य शास्त्र च एक जगह आंदा है कि भी तुसी एक माइम करके पत्थर मारिया कुत्ते नूं और वो डॉग लंगड़ान लग गया। जदों तुसी पूरे मन दे नाल, पूरी कन्विक्शन दे नाल, पूरी अपनी फैकल्टी दे नाल कोई भी एक्शन लैंदे हो स्टेज उत्ते, ते ओदा इफेक्ट जिहड़ा ऑडियंस ते होना ही होना है। पर जे तुसी आप ही पूरी तरह उहदे च गवाच गए हो ना, तुसी अपने आप को खो दिता, और तुहानू पता नहीं मैं की कर रहा, मैं हस रहा कि रो रहा, मैं गा रहा कि की कर रहा। आम तौर ते ऑडिशन दे विच एक्टर्स साडे कोल आंदे ने ते वो पागल दा रोल करते हैं। वो क्यों कि पागल कुछ भी कर सकता है, और वो भुल जाते ने की करते ने, एवं हथ पैर मारते ने, चीका मारते ने, रौले पाते ने कि भी जिन्ना रौला पावांगा शायद मैं बड़ा
इंप्रेसिव लगा, लेकिन बड़े खराब लगते हैं, बहुत खराब लगते हैं। द एक्टर हैज टू हैव मेंटेन ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट, और उहदे नाल ही वो अपना बिल्डअप कर सकता है कैरेक्टर, एंड साइकोफिजिकल एक्शन कर सकता है। ਉਹਦੀ साइकोलॉजी, ਉਹਦਾ माइंड, ਉਹਦਾ एक्शन, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਲ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨਸੀਰੁद्दीन शाह ने देखा होगा। तुसी कदे देखो वो, मैं कहनी हाँ कि गालिब दा एक शेर है, इतना आसान नहीं लहू रोना, ताकत जिगर में हाल कहाँ। ये एक्टर नो, एक्टर दी बड़ी जरूरत है, ए स्ट्रेंथ दी, इनर स्ट्रेंथ ओदे च इन्नी होनी चाहिए टू लहू रोना। एक आम इंसान दा लहू रोना भी कोई पॉसिबल नहीं है। बड़े तुसी दुख नू दिखाना है, ते अंदरों तुहाडे अंदर उदा एक्सपीरियंस, उदा अनुभव, उदी फील होनी चाहिए। सो इस तरीके नाल कोई मतलब कोई हो ही नहीं सकता कि तुसी अगर पूरी अपनी सिंसियरिटी नाल, पूरी कन्विक्शन नाल तुसी कोई रोल कर रहे हो और उदा इंपैक्ट ना बैठे ऑडियंस ते, ये होएगा ही। ਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਔਰ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल बिल्कुल। मैं एक फिल्म लिखी सी, टैंकी दर्द ना आया जी, और मैं बहुत शर्म नाल, बहुत हम्बली, बहुत ही हलीमगी नाल कहनी हाँ कि वो आइडिया मेरे एक स्टूडेंट ने जाके साहब ने दिता, और गुलजार साहब ने उदी फिल्म बनाई माचिस। सॉरी आई एम मैं कदे किसी नू नहीं किया, लेकिन ओदा जड़ा सेंट्रल आइडिया सी, जो कहानी सी, मेरी फिल्म पहले बनी है, माचिस बाद इच बनी है। लेकिन स्टोक्स उन्होंने पूरा मॉडिफाई किया अपने तरीके नाल, कहानी नू भी हर जगह। मेरे को विमेन कैरेक्टर नहीं सी, मेरे ते एक 5 प्यारे सिनोनिमस टू गुरु गोबिंद सिंह साहब दे 5 प्यारे, 5 विच खाड़कू सन, और उन्हां दी जिंदगी रिवील कर दी है कि किन्ना को सफर कर चुके हैं। मेरी फिल्म नू खट्टे पा दिता गया, सरकार बदल गई, उन्होंने कहा ये पास किवें हो गई, ये ते खाड़कुआं दे हक दी फिल्म बन गई है, क्योंकि खाड़कू एक एक अपनी कहानी सुनाते ने और कहते ने कि मन करता है सब कुछ तहस नहस कर दिया। और रोंदी है ऑडियंस, रोंदी है उन्होंने नाल कि भी अज असीं इन्हां नूं कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इन्हां ते की बीती है ओहदी कोई गल नहीं करता। सो वो मैं लिखा, फिर मैं एक कहाँ गए वो दिन, वो लिखा सीरियल, और इस तरह हर प्ले नूं जिन्नू भी मैं कीता उन्होंने बहुत फिल्म भी बनाई सी, होर एक टेलीफिल्म भी तो बनाई सी एक। हाँ जी, हाँ, जिहदे च रोजी ने कीता सी। साहब सिंह भी इसे करके याद करवा रहे हैं कि रोजी ने। अच्छा, मैं तुहानूं दसना चाहनी हां जी, जदों मैं जियांगी शूट कर रही सा ना, ते साहिब नाल आंदा सी रोजी दे। अच्छा, थोड़ा बोल्ड रोल सी, है जी, और वो बहुत शर्मांदी सी, बहुत हेसिटेशन करती सी। साहब सिंह उन्हें इनकरेज करता सी, साहब नूं कहंदा सी नहीं जिवें मैडम कहंदे ने उवें कर। उदों ही मैनूं इन्ना भा गया सी ये मुंडा, इन्ना भा गया सी। मैं क्या देखो इहदी आर्टिस्ट दी वाइफ है, उदों मैनूं नहीं सी पता कि ही इज आल्सो एन आर्टिस्ट इन मेकिंग। ते इहदे च शुरू तो ही खमीर है, शुरू तो ही एक आर्टिस्ट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रानी जी, वैसे ਡੇਅਰਿੰਗ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵੀ, ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ, ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਰੋ ਪਏ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ
ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਐਨੀ ਪੇਨ, ਇਟ ਟਾਕਸ ਆਫ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੇਨ, ਤਾਂਗ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਯਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਪੇਨ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ कि भाई ना बचा बचा के तू रख से तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। क्या बात है। जिंदगी नू बचा बचा के रखने ਲਈ नहीं है, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਰੇੜਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਡੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਡੀਅਰਰ ਟੂ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਪੇੜੇ ਸਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੇ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕਸ਼ਮ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਨੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਔਰ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦ ਸੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1952 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਬਹਿਲ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
जी कोई और दोस्त रानी जी कोलों इन्हां दी तुसी सारियां गल्लां सुनियां, कोई पूछना चाह रहा होवे, कोई सवाल किसी दा? रानी मैम मैं सिर्फ अनीता थैंक्स करना चाहती हाँ। हाँ जी मैनू भी तुहाडे नाल काम करन दा मौका मिलिया है। केवल भाजी जेड़ी फिल्म दा जिक्र हो रहा सी मैं जी हाँ तू भी मैं भी उसदा हिस्सा सी। और मेरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है मैम तुहाडे नाल काम करदे होए। तुसी ये गल शुरू च कही सी कि दर्द सानू जिंदगी च बहुत कुछ दे के जांदे है। हाँ जी ते दर्द औरतां दे हिस्से च कुछ ज्यादा आए ने। हाँ जी हाँ ते कई पीड़ा दे विचों बहुत सारियां औरतां निकलियां ने, मैं भी उन्हां दे विचों एक हां। और मैनू लगदा है कि सानू कला ने रंगमंच ने सानू जिंदगी दित्ती है। बिल्कुल ते सचमुच जे रंगमंच ना हुंदा, जे मैं अपनी गल करां तां मैं ना हुंदी। ते रंगमंच सानू बहुत कुछ दे रहा है और अगे भी देंदा जाएगा। और असी भी उसे जो जिस तरह की जिंदगी रंगमंच ने दी है ते एक खुशहाल जिंदगी लगन लग गई है हुण सानू। चाहे जिन्ने मर्जी दुख दर्द होण ते फिर भी लगता है कि नहीं कोई गल नहीं, जे इन्नियां वड्डियां मुसीबतां चों निकल गए हैं तां अगे भी कुछ नहीं है। तो चंगा लगता है। ते मैनू एक प्ले याद आ रहा मैम, मैं सचमुच उदों बहुत औखी घड़ी दे विच सी जदों मैं तुहाडे नाल प्ले कीता सीगा। जदों आपां पटियाले गए सी हड़ां दे विच। भारत दुर्दशा जी 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 वो बड़ा इंटरेस्टिंग रोवो सब मिलके आओ भारत भाई, रोवो सब मिलके आओ भारत भाई। जब फ्लड आए थे तो गाना गा रहे थे। हाँ जी हाँ जी पटियाले हड़ां दे विच भाजी, केवल भाजी असीं सारी टीम उत्थे फस गए सी यूनिवर्सिटी दे विच। ते पर फिर भी असीं पूरा शो करन गए सीगे, लेकिन बारिश दे हड़ां ने बहुत बड़ा धक्का दिता सीगा, शो नहीं हो सकिया सी। पर असीं 2 दिन उत्थे फसे रहे। पर फिर भी बहुत डेडिकेशन, कितना खतरनाक। हाँ जी मैं वही दसन लगी सी भी जो डेडिकेशन नाल तुसी सानू उत्थों लैके आए सी, जिस तरह नाल तुसी सानू काम करवाउंदे सी, जिस तरह दा ख्याल रखिया सी, वो बड़ा ही खूबसूरत पल सीगे ते मैनू बड़ा चंगा लग्या। बड़ी यादगारी दिन सन। हाँ सुदेश भी सी और सारे सब। हाँ नहीं प्ले जड़ा है वो एक यज्ञ की तरह है। तुसी सारियां ने बहुत अच्छा साथ दिता सी। वो प्ले असी उत्थे करन गए सा, वो भी एक अनुभव सी फ्लड्स दे विच फस जाना। रानी जी तुसी जदों पंजाब रिपेटरी बनी ओदे विच काम कीता सी या नहीं मैं तो आई वाज ऑलरेडी टीचिंग इन द डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी ये मेरे स्टूडेंट सन सारे। सुनीता भी, बलदेव मेरा क्लास फेलो सी, ओदे विच सी सारे सन। चन्नी नहीं सी। So most of the repertory members were my students. चन्नी, कमल तिवाड़ी, केवल तिवाड़ी। हाँ मेरा डॉक्टर एसपी सिंह कुछ पूछ रहे जी। मैं नहीं पूछना जी। मेरी पत्नी जड़ी है वो कदे इकट्ठे रानी बलबीर होना नाल टैगोर थिएटर च गाया कोई प्ले दे विच, वो जरूर गल करना चाहते हैं प्रोग्राम से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम, मैं जगजीत बोल रही हूँ जी। हाँ जी हाँ जी हेलो हाउ आर यू। हाँ थोड़ा पहचान लिया। मेरे फादर बरजेश माथुर होरां दे फ्रेंड सीगे, उन्हां दे लिंक नाल मैं असीं उन्हां दे घर प्रैक्टिस करदे रहा। अच्छा जी। मैं गीत गाया सी शिव कुमार बटालवी जी दा। मैं कंडियाली थोर वे सजना विच उगी विच पहाड़ा। हाँ जी मेरा इंडिविजुअल दा सॉन्ग सीगा। असीं सारियां ने इकट्ठे एक ग्रुप सॉन्ग भी गाया सी। हाँ जी ते मैं तुहानू उदों दी पछाणनी है। खैर मैं भी चंडीगढ़ दी हां वैसे। अच्छा हाँ जी कमल तिवाड़ी, अनिल तिवाड़ी, ये सारे असीं इकट्ठे ही गान जांदे हुंदे सी यूथ फेस्टिवल च भी। हाँ जी वेरी गुड। ओके जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत अच्छा लगा। रानी जी देखो तुहाडे स्टूडेंट भी तुहाडे नाल जिन्हां एक्टर ने काम कीता या तुहाडे कुलीग और तुहानू सुन के ते तुहाडे नाल खुश हो रहे हैं, तुहाडे नाल शेयर भी कर रहे हो पल। कोई और दोस्त कुछ पूछना चाह रहे होवे? साहब सिंह तू बड़े सवाल पूछ रहे। हाँ पूछ। मैं क्योंकि उस साहब सिंह सवाल बहुत अच्छे लगदे ने
ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਗਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? it is rather a ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, दूर दूर तो स्टूडेंट्स आते हैं और अनइवन लेवल्स पैदा हो जाते हैं, अनइवन होते हैं। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ मैं हंबली कहांगी कि मेरे सिफत सी कि मैं पंजाबी च भी समझा देंदी सी गल, हिंदी च भी समझा लेंदी सी और अंग्रेजी दे विच भी। मेरे तीनों लैंग्वेजेस से मैनू कमांड सी ते मैनू बड़ा स्वाद आंदा सी, अच्छा लगदा सी बोल के। ते एक तां इह भाषा दी गल होई, दूजी उन्हां दे कोलों बहुत कुछ आदान प्रदान जिहड़ा सिर्फ तुहाडे नाल ही नहीं हुंदा, दूजे फैलो एक्टर्स दे नाल भी हुंदा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮਿਸ਼ਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗਗਨ ਮਿਥਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਐਕਟਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गुरमुखी सिखवाई और नालो। So it's a very because it's a unity in diversity in the class also, and it's a very interesting challenge as a teacher। और मैं समझनी आ कि हमेशा ही हर जगह हर स्कूल ऑफ ड्रामा दे विच ऐदा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझदा कि यही एक क्योंकि मैं NSD तो उत्थे भी इस तो ज्यादा भी बहुत स्टेटां तो स्टूडेंट आउंदे सी, ते एक टीचर वास्ते चैलेंज भी सी और स्टूडेंट्स वास्ते एक दूजे कोलों सीखण दा बहुत मौका सीगा। बहुत मौका ये बहुत ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਰਾਮਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਚੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲकुल नहीं ਹੁੰਦਾ। और इतना खूबसूरत ब्लेंड ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬੈਕਵਰਡ
बैकवर्ड क्लास तो, लेकिन वो मुंडा बहुत शरारती सी, बड़िया वाहियात गल्लां करदा सी ते मैं गुस्से च एक बारी आके कह दिता 2 कौडी दा बंदा है तू। हाय हाय, मैं आज तक वो अपने अल्फाज नहीं भूल सकी और उस वेले सारा ग्रुप जिहड़ा सी मेरे खिलाफ हो गया, तू ए लफ्ज किवें कह दिता। सो थिएटर दे विच we all learn to be one together without any discrimination कि कौन की है। ये बड़ी खूबसूरत गल। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं समझदा कि थिएटर दी खूबसूरती है, थिएटर सानू सिखाउंदा भी यही है। बिल्कुल रानी जी, क्योंकि हुण साडा टाइम भी हो रहा वा, पर तुसी बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां, खास तौर ते तुसी जिहड़ा संगीत दी गल बिगनिंग दे विच साडे नाल शेयर कीती सारी, और तुसी दस्सिया कि जिहड़ा रंगमंच ने किवें जीना सिखाया, और रंगमंच दे विच कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई रंग नहीं, नस्ल नहीं, जात नहीं, इत्थे सब इक्को जिहे ने। और ये रंगमंच ही है जिहड़ा सानू दसदा है कि असी थिएटर दे विच कुछ भी कर सकदे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन थिएटर, नथिंग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्गा मेरी एक बड़ी प्यारी स्टूडेंट नजर आई सी, नवनिंदर, वो अलोप क्यों हो गई? नहीं, नवनिंदर बैल हैगे ने, बोलदे नहीं, नजर ही आउंदे ने, नजर आ रहे ने, है नजर ही आउंदे ने, बोलदे नहीं। मैम वेरी बैठा लोग रागा रखा जी, बिल्कुल, और बड़ी श्रद्धा नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ बैठा। मैं फॉर्मल स्टूडेंट नहीं ਤੁਹਾਡੀ, पर मैं फिर भी स्टूडेंट हां, मैं इसलिए बड़ी श्रद्धा नाल सुन रही हूं। मेरे स्टूडेंट दी बीवी है, मेरी नूर रानी है। हां, ते मैं डबल स्टूडेंट हो गई ना। डबल स्टूडेंट हो तुसी बैल मैम, दोनों ही टीचर नाले। हां, है ना भाई, दोनों ही जबरदस्त टीचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਥਿੰਕਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, बहुत रिच एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगी साहब, थैंक यू सो मच एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय योर वर्ड्स, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे सामने पेश होवां और एक ऑटोबायोग्राफिकल अपना सोलो परफॉर्मेंस लेके। लेकिन मेरे नाल कोई जिंदगी इस तरह कर दी है कि जदों भी मैं कोई मिथ लैनी आ, कोई सोच लैनी आ, इरादा बनानी आ, तो मार के थप्पड़े दूजे पासे मैनू भेज दिंदी है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਡੂ दैट। ਯੈਸ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, जल्दी। अच्छा, नवनिंदर बोल रही थी। जी मैम। हाँ बोलो जी। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਲ ਮੈਮ? नहीं मैं तो श्रद्धा नाल सुन रही हां अध्यापक। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਨਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਹਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ।
कुछ ब्लैसिंग भी ने एस लॉकडाउन पीरियड दे विच। और मैं ते बार बार इको गल दोहरानी हाँ कि ये समा है कि असी इंट्रोस्पैक्शन करिए, रिट्रोस्पैक्शन करिए, आपां देखिए कुरेद के भी आपां किधर जा रहे हैं, है ना। और वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे ते नहीं है, लेकिन है भी हर एक बंदा, हर एक मनुख, हर एक इंसान अगर सोचे कि भी ये क्यों हो रहा है तो शायद फर्क पे। ते जे आपां अपने आप नूं कहिए कि मैनू की मेरी बला नाल, क्योंकि बहुत जी जड़ा ना बाहर निकल आंदा है, शराबा पी रहे ने। उस दिन मैं सेक्टर 9 मार्केट उत्थे गोलियां चल गई, लोग शराब की दुकान से लंबियां लाइना, और किते कोई इन्ना बंदा नहीं नजर आता, शराब की दुकाना ते लंबियां लाइना। सो ये साडा हुण फर्ज है एज एन एक्टर ऑल्सो, सानू इंट्रोस्पैक्शन करना चाहिए और सानू कुछ ना कुछ अपनी जिन्नी भी कैपेसिटी जो है तब्दीली बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये बहुत तुसी रानी जी बहुत शुक्रिया, तुसी बहुत ही खूबसूरत गल्लां कीतियां और बड़ियां ही मोटिवेट करने वालियां गल्लां कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਤੋਂ 6 ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲਕਮ।